Good morning, everyone. Now I start topic 10, Discovery the Harappan Civilization. Some archaeologists have discovered the Harappan civilizations as follows. So now we start the main subtopic, Cunningham's confusions. The point first, when Cunningham's the first Director General of the ASI began archaeological excavations in the mid 19th century, archaeologists preferred to use the written word, text, and inscriptions as a guide to investigations. Now, second point, Cunningham's main interest was in the archaeology of the early historic age, the 6th century to 4th century CE, and later periods. Next point, a Harappan seal was given to Cunningham by an Englishman. He noted the object but unsuccessfully tried to place it within the time frame with which he was familiar. He missed the significance of Harappan. Subtopic next. Now the topic, a new old civilizations. Seals were discovered at Harappa by archaeologists such as the Dayaram Sahni in the early decades of the 20th century. Rakhal Das Banerjee found similar seals at Mohenjo-daro. In 1924, John Marshall, Director General of ASI, announced the discovery of a new civilization in the Indus Valley to the world. John Marshall's stint as Director General of the ASI marked a major first professional archaeologist to work in India and brought his experience of working in Greece and Crete to the field. Now, second subtopic of new techniques and questions, and explain it. The frontier of the Harappan civilizations have title or no connection with present day national boundaries. Next point, an extensive survey in Kutch has revealed a number of Harappan settlements, and exploration in Punjab and Haryana have added to the list of Harappan sites. These exploration promise to yield interesting result in the future. Now start the topic 11, that is problems of piecing together the past, classifying finds. Recovering artifact is just the beginning of the archaeological enterprise. Archaeologists classified their finding by following two principles. That the first principle of one simple principle of classification, it is in terms of material such as stone, clay, metal, bone, ivory, etc. The second and more complicated is in term of function. Archaeologists have to decide whether, for instances, an artifact is a tool or an ornament or both, or something meant for ritual use. And the last subtopic is problems of interpretation. The problems of archaeological interpretations are perhaps most evident in attempt to reconstruct religious practices. Next point, these included terracotta figurines of women, heavily jeweled,
some with elaborate head dresses. These were regarded as mother goddesses. Some animals, such as the one-horned animal, often called the unicorn depicted on seal, seem to the mythical composite creatures. In some seals, a figure shown seated cross-legged in a yogic posture, sometimes surrounded by animals, has been regarded as a depiction of Proto Shiva. Last 2 points. The earliest religious text, the Rig Veda, compiled c. 1500 to 1000 BC, mentions a god named Rudra, which is a name used for Shiva in later Puranic traditions. And last point, unlike Shiva, Rudra in the Rig Veda is neither depicted as Pashupati, lord of animals in general and cattle in particular, nor as a yogi. Today's topic 10 and 11 are completed. So now translate in topic 10 and 11 in Hindi. So start in Hindi. हड़प्पन सभ्यता की खोज, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम कनिंघम के बारे में माना जाता है। जो कनिंघम का भ्रम क्या था, कहा गया है कि जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबसे पहले जो डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19th सेंचुरी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन के माध्यम से प्रारंभ किया था, तब आर्कियोलॉजिकल ने अपने इन्वेस्टिगेशन में यह मार्गदर्शन एक रिटेन सोर्स के आधार पर प्राप्त किया, जो रिटेन सोर्स लिटरेचर और इंस्क्रिप्शंस पर बेस्ड था। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा लोग लाइक करने लगे और इसी प्रयोग के माध्यम से कनिंघम का जो मेन इंटरेस्ट था, यह मेन इंटरेस्ट भी अर्ली हिस्ट्रिक एज के रूप में, जो कि लगभग 6 ईसा पूर्व से 4 ईस्वी तक माना जाता है, इसके बाद जितने भी पीरियड से संबंधित आर्कियोलॉजी के रूप में था, वह आरंभिक बस्तियों के रूप में, आरंभिक रीजन के रूप में, प्रोविंस के रूप में पहचान किया गया, जो कि 4वीं से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीपीय में आए जो चीनी विजिटर्स थे, यानी चीनी जो बौद्ध विजिटर्स थे, उसी के माध्यम से छोड़े गए जितने भी स्टोरीज थे, जितने भी उसके वृतांत स्टोरी थे, उन सारे बातों का यह प्रयोग किया और कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्हीं इंस्क्रिप्शंस और कलेक्शंस के आधार पर इसका भी ट्रांसलेट करने का काम किया। फिर उसके बाद कहा जाता है कि यह अनुवाद निश्चित तौर पर यह काफ़ी एक कल्चरल इम्पोर्टेंस के रूप में माना जाता है, जो कि यह बताया गया है। फिर इसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि जो न्यू सिविलाइजेशंस के बारे में कहा जा रहा है, न्यू सिविलाइजेशंस के रूप में हम जो बात करते हैं, या न्यू ओल्ड सिविलाइजेशंस के रूप में जो टॉपिक था, उसमें कि 20th सेंचुरी के अर्ली दशक में भी दयाराम सहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरों की खोज की, सिल्स की डिस्कवरी किया, तो निश्चित तौर पर आरंभिक जो समय था वो काफ़ी स्तरों से अधिक प्राचीन स्तरों से संबंधित था। यानी जो उसका लेवलिंग, हिस्ट्रिकल लेवल जो था, यह सबसे अधिक मतलब प्राचीन था, एंशिएंट था, उससे संबंधित था। ये भी कहा जाता है कि राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा में मिली मुहरों के समान मुहर भी मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, और इस मोहनजोदड़ो से जो निकाला गया उससे यही अनुमान लगाया गया कि ये दोनों जो पूरा स्थल है था
वह एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग माने जाते थे। फिर ये भी कहा जाता है कि 1924 में जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो चीफ थे, जो डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने यानी कंप्लीट यानी इंटायर वर्ल्ड के सबसे सक्षम जो इंडस वैली का जो एक न्यू सिविलाइजेशंस की जो खोज की घोषणा की, इस घोषणा के साथ ही जॉन मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसी से 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। यानी ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खनन से हड़प्पा स्थलों पर मिली मुहरों जैसी यानी इसकी पहचान की जा सकी और कुछ की पहचान नहीं भी की जा सकी, जैसा कि इतिहासकार इस चीज़ को इंडिकेट करता है। इस प्रकार से विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली है बल्कि मेसोपोटामिया की वो समकालीन भी था, इसकी भी जानकारी मिला है, जो कंटेम्प्रोरी ऑफ मेसोपोटामिया के रूप में माना जाता है। इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का जो पीरियड था, यह रियल में भारतीय पुरातत्व के लिए यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन का काल माना जाता है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि जो टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस के बारे में जो टॉपिक है, सब टॉपिक एनसीईआरटी में दिया गया है, उस पर हम कुछ भी आपको हाईलाइट कर देते हैं कि इसमें 1944 में भी यह बोला जा रहा है कि जो भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी जो इन्वेस्टिगेशन के जो डायरेक्टर जनरल बने थे, वह REM व्हीलर ने भी इस समस्या का निकालने का प्रयास किया है। उसी के बारे में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज था वह आज भी नेशनल बाउंड्रीज से थोड़ा अलग या फिर उससे कोई संबंध न हो, इसके रूप में यह बात कही जा रही है। फिर ये भी कहा जाता है कि कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षण से यह हड़प्पाई वस्तुओं के प्रकाश में आई। पंजाब और हरियाणा में किए गए इन्वेस्टिगेशन से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई तरह के नाम जुड़ा, जो नाम विभिन्न रूपों में है। फॉर एग्जाम्पल कालीबंगल, लोथल, राखी गढ़ी, धौलावीरा, इन सब चीज़ों का भी खोज किया गया है, जो कि इतिहास में इस प्रूफ को उसके आधार के रूप में यह बताई जाती है। अब हम टॉपिक 11 में आते हैं। कहता है कि जो टॉपिक 11 में है कि क्लासिफाइंग फाइंड्स, यानी जो वर्गीकरण किया गया डिस्कवरी का कि कैसे कैसे मिला और इसको क्लासिफाई कैसे किया गया है, इसके बारे में बताया गया है कि पुरातत्व यानी पुरावस्तुओं को फिर से प्राप्त पुरातात्विक उद्यम का जो अधिकांश या आरंभ का जो काम था, वह इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को क्लासिफिकेशन किया कि यह खोज कैसे हुआ। इस क्लासिफिकेशन का जो जनरल प्रिंसिपल्स है, वो जनरल प्रिंसिपल्स क्या थे, इसमें कहा जाता है उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर कि पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि हम कहते हैं बोन को, हाथी दांत इत्यादि, ये सब भी संबंध रखता है। दूसरी ओर कह रहा है कि सबसे जो कंट्राडिक्ट था यानी जो जटिल था, उसकी उपयोगिता के आधार पर भी पुरातत्वविदों ने यह तय करना पड़ा, पुरातत्वविदों को यह मतलब कलेक्शंस के माध्यम से जानना पड़ा यानी पहचानना पड़ा कि कोई भी पुरातत्व वस्तु या पूरा वस्तु एक औजार है या एक आभूषण है या फिर ये दोनों है, इसका कोई मतलब बिल्कुल प्रूफ उस तौर पर नहीं बताया गया है। अनुष्ठानिक प्रयोग के रूप में यह कोई वस्तु है या नहीं है, इसके बारे में यह कन्फ्यूजन है। फिर ये भी कहा जाता है, अगला टॉपिक है कि प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी इसकी जो एक्सप्लेनेशन किया गया, इसकी जो व्याख्या किया गया है, उसमें क्या समस्या थी, इस बात पर भी जानकारी दिया गया है। विभिन्न विजिटर्स के माध्यम से जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो प्राप्त किया है, उस प्राप्त आधारों पर जो इतिहासकारों ने लिखा है
उसमें कुछ सटीक बात की पहचान बताया गया है। कहता है कि जो प्रोटो शिव के बारे में चर्चा है, प्रोटो शिव हम कहते हैं सबसे प्राचीन शिवा के बारे में, तो इसमें बताया गया है कि यह मोहरों पर दिखाई देता है। यानी जैसा कि इतिहासकार कहता है कि सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद के रूप में माना जाता है, और ऋग्वेद सबसे इम्पोर्टेंट वेद के रूप में जानी जाती है, जो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच इस टेस्ट का संकलन किया गया है। इसमें रुद्र नामक एक देवता का भी उल्लेख मिलता है, जो बाद में चल करके यह बताया गया है कि पौराणिक परंपराओं में शिव एक प्रयुक्त नाम है, क्योंकि उस समय जो एनिमल का पशु था वह शिव ही था, जो पहली शताब्दी से लेकर के और पहली ईस्वी तक में यह बात जानी जाती है। हम आगे के जो चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 4, इसमें भी कुछ चीज़ हमको प्राप्त होंगे जिसके बारे में भी जानकारी दिया गया है। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को भी ऋग्वेद में न तो पशुपति का मतलब होता है जो पशु का पति, यानी गॉड ऑफ एनिमल्स। तो पशुपति सामान्य रूप से जानवरों के लिए या विशेष रूप से मवेशी के स्वामी माने जाते हैं, उसको हम पशुपति कहते हैं, और न ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है, यानी यह इसको पशुपति के रूप में दिखाया गया है। अगर हम अदर वर्ड के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे तो कहता है कि यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता है। ऋग्वेद में जो इसका चित्रण किया गया है वह निश्चित तौर पर यह रुद्र के विवरण से बिल्कुल टैली नहीं करता है, और यही कारण है कि यह विद्वानों का, जो कुछ विद्वान है, जो कुछ स्कॉलर्स थे, वह अलग अलग व्यू के माध्यम से अपनी एविडेंस को रखे हैं, और सभी एविडेंस को एक कंक्लूड रूप में, जो मतलब कॉमन लिटरेचर्स के रूप में इतिहासकार ने जगह दिया है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो स्टूडेंट, आज आपका टॉपिक 10 और टॉपिक 11 हम फिनिश किए हैं। अब इस टॉपिक के साथ चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। तब तक के लिए आप खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और इसी सुरक्षित के साथ खूब मन से पढ़िए। आपके पास NCERT बुक है तो निश्चित पढ़ेंगे, क्योंकि NCERT बुक आपको इन डिटेल पढ़ना होगा, और हमने प्रत्येक टॉपिक को एक लेक्चर टॉपिक बनाया है। मैं उसी टॉपिक के माध्यम से आपको पढ़ाता हूं, जो मेन थीम है। आप NCERT बुक को निश्चित पढ़ें। कल के बाद मैं क्वेश्चन आपको दूंगा इस पूरे चैप्टर का, वो क्वेश्चन बनाने के बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।